پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے بزرگ اور مقدس ترین نام میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آج شب خداوند کا یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ان خوبصورت اور مبارک گھڑیوں کے لیے جو میرے جیون میں یک بار پھر خداوند نے بخشی ہیں کہ ہماری کرائسٹ ویژن یورپ کی اسکائپ آئی ڈی پر خدا کے لوگوں کے ذریعہ کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے میں برکت پانے والا ہوں۔ بھائیوں بہنوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا جو اس وقت فیس بک کے متعدد پیجز پر، یوٹیوب اور واٹس ایپ گروپس میں میرے ساتھ مل کر خداوند کے اس زندگی بخش اور بیش قیمت کلام کے سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی طرح ہم سے ہم کلام ہو، بولے اور آج کی باتیں ہمارے لیے ایمان افروز ہوں۔ عزیزو، ہم یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کے 21 باب کا آج آغاز کریں گے۔ صرف ایک آیت آج آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ تعارفی آیت ہوگی اور اگر خداوند کی مرضی ہوئی کہ پھر میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں تو نیکسٹ ویک پھر مل کر ہم اگلی آیات پر سیکھنے والے ہوں گے، اور آپ اس دوران اس 21 باب کو اپنے پاس جو بائبل مقدس ہے ابھی تو نہیں، ابھی صرف سنیے گا، لیکن بعد میں اس 21 باب کو ہفتہ کے دوران ضرور تلاوت کیجیے تاکہ جب بات چیت ہو، بائبل سٹڈی ہو تو آپ بہتر طریقہ سے میرے ساتھ مل کر سمجھ سکیں اور سیکھ بھی سکیں۔ مکاشفہ کا 21 اور 22 یہ دو ابواب چونکہ آخری ابواب ہیں، اس سبب سے یہ اپنی نوعیت اور اپنے متن اور جو کچھ اس میں خزائن پائے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ بہت اہم ترین ابواب ہیں۔ اس میں ہم نئے یروشلیم، نئے آسمان اور نئی زمین کی بابت بہت کچھ دیکھیں گے، اور ہم ان دو ابواب میں اپنی منزل کے بارے میں، جو مسیح یسوع میں لوگ ہیں ان کی منزل کیسی ہوگی، کیسا مقام ہوگا، اس کی بابت دیکھیں گے۔ ان دو ابواب میں اب آگ، دھواں، زلزلہ، بھوچال، طوفان، گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل، رونا، آہو نالا، ماتم، اس سب کچھ سے اب اس 21 اور 22 ابواب میں ماحول مکمل طور پر پاک ہوگا۔ ہاللویا، مکمل طور پر پاک ہوگا۔
ان दो अबवाब में हम माजी में होने वाली तबाहकारियों से मुताल्लिक कोई बात नहीं देखेंगे। अब आबाद कारी की बात हो रही होगी, एक सुबह नौ जहां खुदा का जलाल और उसकी हुजूरी उसके लोगों के बीच में होगी। आयत तलावत करता चलूं ताकि हम इस आयत के मुताबिक और आगे बढ़ें। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। आयत तो मुख्तसर सी है ना, लेकिन इस आयत में बड़े गहरे खजाइन हैं, हमारे लिए मालूमात और हमारे इल्म में इजाफा के लिए बहुत गहरी और अमीक बातें हैं। मुकद्दस यूहन्ना ये बयान करते हैं कि मैंने एक नए आसमान को और एक नई जमीन को देखा। ये जो यूहन्ना मैंने देखा के जुमले या अल्फाज या इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, ये कोई पहली बार या एक दफा नहीं है। मुकाशफा की किताब में बारहा बार मैंने देखा, मैंने सुना के कलमात हम देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये खुदा का कलाम है, मुकाशफा खुदा का कलाम है। पैदाइश से मुकाशफा तक कुलियतन खुदा का कलाम है और खुदा अपने बंदा यूहन्ना से बात कर रहा था। और इसीलिए तो यूहन्ना कहते हैं मैंने सुना। खुदा अपने बंदा यूहन्ना को मनाजर दिखा रहा था, इसीलिए तो यूहन्ना कहते हैं मैंने देखा। तो अब क्या देखते हैं? एक नया आसमान और एक नई जमीन को देखा है। और फिर वो कहते हैं सबब यह है इन नए आसमान और नई जमीन के देखने का कि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। हमने जब 20 बाब की 11 आयत से आगे देखा था तो हमें याद है कि लिखा था, जो आज भी लिखा है, कि वो जो तख्त पर बैठा हुआ था, सफेद पोशाक पर में मलबूस सफेद तख्त पर, उसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए हैं। इसीलिए अब 21 बाब के आगाज में यह बताया जा रहा है कि ये आसमान और ये जमीन मैंने देखा कि ना रहे, और इवन समुंदर भी न रहा, क्योंकि मैंने एक नए आसमान और एक नई जमीन को देखा है। याद कीजिए कि जब हम आसमानों की बात करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि नए आसमान से मुराद, इसको बयान करने के लिए मैं ये कहूंगा, आसमान 3 है, 3 आसमान। एक तो ये जो नीली ब्लू स्पेस या फजा मुझे और आपको नजर आती है,
और परिंदगाने फलक इस में परवाज करते हैं, कई ऊंची परवाज और कई नीची। इसके बाद एक और आसमान है जहां पर हमें अनवार नजर आते हैं। अनवार से मुराद नैयर अकबर और असगर, यानी आफताबो महताब, शम्सो कमर और सितारे। ये दूसरे आसमान की बात हो रही है। और उसके बाद तीसरा आसमान जहां सिर्फ और सिर्फ खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी है। दैट्स ऑल। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा बाकी आसमानों पर या जमीन पर नहीं, वो हमा जा हाजिर है, लेकिन हम उसके कलाम में इस सदाकत और इस हकीकत को देखते हैं अपने समझने के लिए कि खुदा बुजुर्ग और आली है, जिस जैसा कोई और नहीं है। जब यहां लिखा है कि मैंने नया आसमान देखा, तो इसका मतलब, या मुझे यह भी कहना चाहिए कि मैंने देखा कि वो जो पुराना आसमान और जमीन वो जाते रहे, जैसे इस आयत के सेकंड पार्ट में हिस्सा में है, पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। ये खत्म हो जाने वाले, नाबूद हो जाने वाले, ये पहला आसमान, नीला आसमान जहां पर परिंदगान है, और उसके बाद दूसरा आसमान जहां हमें अजराम फलक नजर आते हैं, ये तमाम खत्म हो जाएंगे। और जमीन तो यही जमीन है जिस पर मैं और आप आज रहते हैं। इस जमीन और इन आसमानों के खत्म हो जाने के पीछे राज क्या है? मैं समझता हूं कि इस जमीन को भी बशर ने अपने कामों और अपने अफाल, आमाल, यानी करतूतों से इस कदर आलूदा कर दिया कि अब इस जमीन पर कहीं पाकीज़गी बसी हुई नजर नहीं आती। और यहां तक कि इंसान के गुनाह की आलूदगी ने इस फिजा को भी आलूदा कर दिया। ये चांद, सितारे, आफताबो महताब, ये तमाम अब हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। खुदा इनको रीफॉर्मेट या रिक्रिएट नहीं करेगा। ये मुकम्मल तौर पर खत्म और नाबूद हो जाएंगे, जैसा हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं। क्यों ना मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम में से चंद आयात की तरफ ले चलूं, क्योंकि इस आसमान और इस जमीन के मिटने का बजस अहदे जदीद में ही जिक्र नहीं है, बल्कि अहदे अतीक में भी है। बुजुर्ग जबूर का मुसन्निफ, जब मैं 102 जबूर देखता हूं और उसकी 25 से 27, उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, और खुदा जानता है, लेकिन खैर लिखा है, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सन्नत है, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा। हालेलुया। बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा।
और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। देखा कि ज़बूर नवीस भी इस आसमान और जमीन के जाते रहने की बात करता है। और फिर अगर मैं बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफा और उसके 65 यानी 65 बाब को देखूं और उसकी 17 आयत से, कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्रमी बनाऊंगा और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज फिर कभी सुनाई ना देगी। हालेलुया। खूबसूरत तरीन मकाम जहां पर जैसे बयान कर चुका हूं, आहो नाला, रंजो मातम, टेंशन, फिक्रें और परेशानियां लाहक ना होगी। एक ऐसा नया आसमान और एक नई जमीन। और फिर जब मैं मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील की तिलावत करता हूं, इसका 21 बाब और इसकी लूका 21 बाब और उसकी 3 आयत, लेकिन ये वो नहीं है। हम जरा आगे पढ़ते हैं और 5 आयत, बल्कि ये भी यरूशलेम की बर्बादी के ताल्लुक से है। मैं बेहतर होगा कि हम पहला पतरस का खत निकालें, दूसरा पतरस का दूसरा खत, इसका 3 बाब और इसकी 12 और 13 लिखा है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। एक ऐसा मकाम जो अहद अतीक और अहद जदीद के मुख्तलिफ मुसन्निफीन पाक रूह की तहरीक से मुकाशफा 21 की पहली आयत के साथ टैली होते हैं कि ये जमीन और ये आसमान फिर नहीं रहेंगे। एक नई जमीन, टोटली नई, और एक नया आसमान बन जाएगा। इस बात को हम अच्छी तरह से जान लें कि यह सिर्फ जमीन और आसमान के ही चले जाने, मिट जाने और नए आसमान और नई जमीन के बनने की ही बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि जब खुदा ने आदम को और हवा को इस जमीन पर उनके पांव के टिकने के लिए जगह बनाई, तो वो कैसी हसीन थी। उसमें कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। एक ऐसा मकाम जहां मुकम्मल तौर पर रास्तबाजी बसी हुई थी। उनके आने से पहले खुदा ने ऑलरेडी वो धरती
ये जमीन और वो खित्ता बना डाला जहां पर खुदा उनको वहां पर ला रहा था। वो जब आए तो गुनाहगार नहीं थे, वो पाक थे जैसे खुदा पाक है, आजाद मर्जी थे जैसे खुदा। इख्तियार खुदा ने उनको एक खास हिस्से का दिया, लेकिन खुद मुख्तार थे। और मैं समझता हूं कि अब खुदा फिर से आदम के सबब से, और मैं और आप जो आदम की औलाद हैं, हमारे वसीला से जो इस जमीन पर गंद हुआ है, इसको मिटाकर खुदा अब अपने मुकद्दसीन के लिए, अपने लोगों के लिए जो उसकी तरफ से निजात के मंसूबा यानी मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं और अपनी पोशाक उसकी रास्तबाजी की पोशाक में बदल देते हैं, खुदा उनके लिए भी एक नई जमीन और एक नया आसमान तैयार कर चुका है। वो वहां पर होंगे। और फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा यह है, और समुंदर भी ना रहा, यह जमीन भी नहीं, ये आसमान जिसको हमने आलूदा किया, बेकसूं, मजबूर, नादार, बेसहारा, बेवाऊं, मजलूम लोगों की फरियाद, हमारे जुल्म की आवाज इस फजा में पहुंची है। खुदा इस तमाम घटा को खत्म कर डालेगा और फिर एक नई जमीन और एक नया आसमान बना डालेगा, और इस समुंदर का भी खात्मा हो जाएगा। अगरचे हम उस नए यरूशलेम, उस नए आसमान और उस नई जमीन के बारे में ये पढ़ते हैं कि वहां से एक आबे हयात का दरिया जारी होगा, जब हम उस आयत पर जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन दरिया जरूर है, लेकिन समुंदर की बाबत हमें जिक्र नहीं मिलता। इस आयत में जो पहली आयत है, लिखा है कि समुंदर भी न रहा, और इसका भी अहदे अतीक के कई रेफरेंसेस में ऑलरेडी जिक्र हो चुका है कि समुंदर नहीं होगा, जैसे जबूर 72 की 8 है, यसाया 11 की 9 और 11 है, हिजकिय्याल 47 और उसकी 10 आयत है, 15 आयत है, फिर 17 आयत है, और 18 और 20 भी, और फिर जकरिया 9 की 10 और फिर 14 की 8। ये तो अहदे अतीक के वो रेफरेंसेस हैं जिनमें हम इस समुंदर के खत्म हो जाने की बाबत मुतालिया करते और स्टडी करते हैं। आखिर क्या वजह है कि यह समुंदर नेस्त हो जाएगा और खत्म हो जाएगा? क्या वजह है? एक आलम यह बयान करते हैं कि जो अहले यहूद हैं, कदीम दौर में भी और इवन आज में भी, उनका समुंदर के बारे में यह ख्याल है कि यह सेपरेशन, यह जुदाई पैदा करता है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि समुंदर दो खित्तों के बीच में एक रुकावट का सबब जरूर है, और सिर्फ समुंदर की ही बात नहीं है, जजायर की भी बात है, दरियाओं की भी बात है। लेकिन यहूदी
तसव्वुर और कंसेप्ट के मुताबिक यह समझा जाता था कि यह सेपरेशन और जुदाई का मकाम है। नंबर 2, वो ये सोचते थे कि समुंदर मुर्दों की जगह है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समुंदर में गए और फिर उनका पता तक न चला। खा वो नूह के वक्त, खा वो टाइटैनिक जैसे तूफानों के सबब से गए, खा वो सैलाबी रेले के सबब से। इसीलिए तो हम 20 बाब की 11वीं आयत के बाद गुजरी बाइबल स्टडीज में यह देख रहे थे कि फिर समुंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए। तो यहूदियों का ख्याल था कि यह एक ऐसा मुकाम है जहां पर मुर्दे हैं, और आप जानते हैं कि यहूदी लोग मुर्दे को हाथ भी नहीं लगाते थे कि हम कहीं नापाक ना हो जाए। इसको जुदाई का मकाम और इसको बदी का मकाम भी कहा गया, क्योंकि मकाशफा की किताब में हम उस हैवान के समुंदर में से निकलने की बात करते हैं, अगरचे वो कौमों की तरफ इशारा है कि उनमें से निकलेगा मुखालिफ मसीह। लेकिन मरकजी बात यहां पर यह है कि यह समुंदर जो आज हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों के साथ मिला हुआ, खा वो बहरुल काहिल हो, बहिराए अस्वद हो, बहिराए अरब हो, या बहिराए रूम हो, या वट एवर अटलांटिक ओशियन, ये तमाम समुंदर जो 1/3 पानी है खत्म हो जाएगा, और फिर एक ही आबे हयात का दरिया बह रहा होगा। वो आबे हयात का दरिया कैसा, क्या, कौन होगा, वो तो वक्त आने पर हम बात करेंगे। इस समुंदर की वहां पर फिर जरूरत नहीं होगी, ना ही केकड़ों की और ना ही मछलियों की। हम वहां पर कैसे होंगे, जूं जूं आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो एक ऐसा नया आसमान और एक ऐसी नई जमीन होगी जो बदी और शरारत से मुबर्रा, पाक, और जहां पर मुकम्मल तौर पर रास्तबाजी होगी, खुदावंद का जलाल और खुदावंद की हजूरी होगी, और खुदा के मुकद्दस लोग उस नए आसमान और नई जमीन के वारिस होंगे। मैं सोचता हूं कि सिर्फ मसीह का कलमा पढ़ लेना, यानी नई पैदाइश का तजर्बा जिसको हम कहते हैं वो, और मसीह का इकरार करना और बपतिस्मा भी ले लेना, भले जौन सा भी हो, ये इब्तिदा है। लेकिन दरअसल यही सब कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी सोचों की तकदीस, हमारे ख्यालों की तकदीस, हमारे दिल की तकदीस, हमारी जिंदगी की तकदीस। मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम इस कलाम के आईने में हम जो नई पैदाइश का तजुर्बा पाए हुए लोग इस कलाम के तराजू पर आज अपने आप को तोलते हैं, क्या अपने आप पर मातम करने का दिल नहीं करता? कहां हम सो रहे हैं? अपने आप को हमने धोखे में रखा हुआ है। यहूदा की तरह यीशु को आज भी हम चंद टकों के एवज बेच रहे हैं, और मसीह के साथ जो वफादारी होनी चाहिए वो नहीं है।
नए आसमान और नई जमीन के ख्वाब देखने के लिए नया बनना पड़ता है, और मुझे और आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आए हम अपने आप में तब्दीली लाएं, 2 नंबरी हमारी जिंदगियों से जाती रहे, और खुदा के पाक रूह को मौका दे। ऐ खुदा, अपने पाक रूह के वसीला से मेरी तकदीस कर। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो खुदा से कहे, खुदावंद मुझे लगता है कि इस हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। मुझे इस रियाकारी की जिंदगी से बाहर निकाल, और खुदावंद ऐसा करने पर कादर है। वक्त है अपने आप पर मातम करें, अपनी बेबसी और गुनाहगार हालत पर, और खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझे अपना बना लीजिए। सिर्फ नया आसमान और नई जमीन ही नहीं, दिल भी नया होना चाहिए। और खुदावंद यही मेरी और आपकी जिंदगी से चाहते हैं। हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक आसमानी पिता, आपके कलाम की इन गहरी, अमीक और खूबसूरत बातों के लिए मैं आपकी तमजीद करता हूं। खुदावंद, हम जब अपने आप को इस कलाम के आईना में देखते हैं तो हमारी सूरत धुंधली नजर आती है, क्योंकि गुनाह की गर्द से हमने अपने आप को आलूदा किया हुआ है। यीशु के नाम से ऐ बाप हमें मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए, और हमें अपनी जिंदगियों की, अपने दिलों की, अपनी सोचों की, अपने जहनों की तकदीस करने का फजल अनायत फरमाए। ऐ खुदावंद, हमारी ये इबादत रूटीन के मुताबिक मजबूरन ना हो, बल्कि रूह और सच्चाई से हो। और आप तो हमारे दिलों को जानते ही हैं हम कहां हैं। ऐ पाक रूह, हमें नया बना दीजिए। इस कलाम के सांचे में ढलने का फजल अनायत फरमाइए। दुनिया क्या करती है, हम अपनी आंखें फेर कर आपकी तरफ लगाने वाले हो। और आज के कलाम के वसीला से मेरे भाई और मेरी बहनें, मेरी कौम के बेटे और बेटियां जिनको ऐ पाक रूह आपने तोड़ा है, मैं शुक्र अदा करता हूं। दुआ करता हूं उन जिंदगियों में आप काम कीजिए, और खुदावंद यीशु के नाम से इनकलाब पैदा कीजिए। यीशु के नाम से अब जहां थे वहां ही ना रहे, बल्कि अब मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचते चले जाएं। हर तरह की बीमारी, काल, वबा, मुसीबत और नागहानी आफतों को यीशु नाम में हुक्म देता हूं कि इन जिंदगियों से दूर हो जाए। हर तरह की टेंशन के पहाड़, डिप्रेशन और मायूसियों की दलदलें हमेशा के लिए बंद हो जाए, और आपके लोग आपके नाम को जलाल और इज्जत देने वाले हो। खुदाबंद, इस खाकसार खादम की अपने लोगों के बिहाफ पर दुआ को सुनिए, फरियाद को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक खुदाबंद की अमान में रहें
اور اپنے آپ کو جانچتے اور پہچانتے رہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔